کہ مہنگی بجلی نہ کرنے کے دعووں نے کیا عوام کو خوار، ایک بار پھر عوام ہوئی مہنگی بجلی کا شکار۔ بجلی 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی، فروری کے بلوں میں اضافی رقم وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی نہ کرنے کے دعووں نے کیا عوام کو خوار، ایک بار پھر عوام ہوئی مہنگی بجلی کا شکار۔ بجلی 3 روپے 10 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی، فروری کے بلوں میں اضافی رقم وصول کی جائے گی۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ غریب عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یاماہا کمپنی نے 3 موٹر بائکس کی قیمتوں میں 11,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ موٹر بائکس کی قیمتوں میں اضافے پر شہری شدید نالاں ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماجد کلاسرا۔ جی ماجد، بتائیے گا کون کون سی وہ 3 بائکس ہیں جن کی قیمتوں میں 11,000 روپے کا اضافہ کیا گیا؟ ہاں جی بالکل، دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں غریب عوام کی، تو غریب عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یاماہا کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ 3 موٹر بائکس ہیں، اس کی قیمتوں میں 11,000 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں موٹر بائکس کی، تو یاماہا YB 125Z کی قیمت جو ہے وہ 2,01,000 روپے ہو گئی، اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں یاماہا YB 125ZDX 2,16,000 روپے اور 500 روپے تک پہنچ چکے اس کی قیمت، اور اس کے ساتھ ساتھ یاماہا YB 125cc 2,23,000 روپے کی ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جو شہری ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں کہ آئے روز کمپنیوں کی جانب سے جو قیمتیں ہیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ غریب آدمی کی یہ سواری ہے، ان کے لینے مشکل ہو گیا ہے۔ شہری موجود ہیں جو اس ٹائم جو ہے وہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ سر بتائیے گا، یاماہا کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ ریٹس میں اضافہ کیا گیا 11,000 روپے تک، تو کیا کہیں گے، کیا مشکلات درپیش ہیں؟ سر آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، پہلے انفلیشن کی وجہ سے اتنی مہنگائی اوپر چلی گئی ہے کہ غریب آدمی کے لیے تو سب سے فیزیبل سواری یہی بنتی ہے بائک۔ اس میں بھی یہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ریٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، 2,000 3,000 اور اب تقریباً 11 سے 12,000 ریٹس اوپر چلے گئے ہیں، اور یہ غریب آدمی کی اپروچ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کمپنیز کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کچھ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے ریٹس پلس ہوئے ہیں، باقی یہ جو بہت بڑا گیپ ہے 12,000 13,000 ریٹس اوپر چلے گئے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈیلر حضرات مجھے جی سر بتائیے گا، کمپنی ریٹس مہنگے کرتی ہے، آپ بھی مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ بتائیے گا قیمتیں جب بڑھتی ہیں جو کسٹمر ہیں وہ کس حد تک آتے ہیں، کیا مہنگائی کا شکار ہے؟ سر جی، کسٹمر جب ایک روٹین پہ آتا ہے نا، تو ایک ریٹ سٹیبل ہو تو پھر ایک بائکس وغیرہ یا ہمارا بزنس چلنے لگ جاتا ہے۔ جس ٹائم ریٹ ایک دم انکریز ہوتا ہے تو ہمارے کسٹمر بیک فوٹ پہ ہو جاتا ہے۔ جو ایک سوچ کے آتا کہ جی میں نے یہ لینے جا رہا ہوں، پتہ چلتا ہے جی 12,000 روپے ریٹ انکریز ہو گیا ہے۔ کیسے انکریز ہو گیا یہ کمپنیز ہمیں کبھی جسٹیفائی نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیلی روٹین جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا ان کمپنیز پہ کتنا ہولڈ ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تقریباً آئے مہینے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جی اب بھی ریٹ اوپر ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہمارا بزنس جو آٹو بائکس کا بزنس ہے وہ مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور انتہائی یعنی تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہا۔ جی بالکل، جو ڈیلر حضرات ہیں وہ بھی کافی پریشان، اور اس کے ساتھ ساتھ شہری بھی کافی پریشان ہیں۔ وہ کمپنی سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جو قیمتیں ان میں کمی کی جائے، اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت بھی اس حوالے سے نوٹس لے تاکہ شکریہ ماجد کلاسرا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کا تونسہ شریف میں کلمہ چوک پر مہنگائی کے خلاف جلسہ احتجاجی دھرنا دیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تونسہ شریف میں دھرنے سے جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکمرانوں نے جھوٹے وعدے کر کے عوام کو سبز باغ دکھائے، اور اب اشیاء خورنوش، چینی، گھی، دالیں، ادویات اور بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان انتظامیہ کی نااہلی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں۔ بستی لنگڑیال کی سڑک پر پتھر ڈال کر کام چھوڑ دیا گیا، شہریوں کا احتجاج، سڑک جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ ابراہیم خان رپورٹ کریں گے۔ ملتان کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئیں۔ بستی لنگڑیال کی سڑک پر پتھر ڈال کر نامکمل چھوڑ دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ ہمارا ارصد دراز سے وہ روڈ خراب ہے،
कासिम अली सुक्की पुल से लेकर लिंगड़ियाल चौक तक ये रोड का फंड लिया है। 99 लाख रुपए लोगों ने हमसे लिया है और इस यहाँ काम क्या किया है, पुराना रोड़ा उठा के वहीं दोबारा रोड़ा डाला गया है, उसी रोडे पे कारपेट कर दिया है। ये क्या किया इन्होंने, हमारे लिए जलील कर रहे हैं हमें। अहले इलाका का कहना था कि 6 माह में सड़क मुकम्मल नहीं की गई, पता नहीं टैक्स कहाँ जा रहा है। गिरदो गबार के बायस दमे का मर्ज फैल रहा है। देखिए मट्टी वगैरह सारी उड़ती है, सब लोगों के दुकानों पे हर पासे ये दमे के मरीज हो रहे हैं, लोग टेंशनें ले रहे हैं, कहाँ चली गई इंतजामिया। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने अच्छी सड़कें दी, लेकिन अब बुरा हाल है। टैक्स लगाया जाए खाया ना जाए, आला हकाम रोड मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियांवाली में शहबाज खेल रोड की अबतर सूरत हाल है। गहरे गढ़ों के बायस सफरी मुश्किलात बढ़ गई। शहरियों की दुहाइयां कहते हैं कि सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए। बारिश के दिनों में गुजरना मुहाल हो जाता है। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली में शहबाज खैल लिंक रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह मिट्टी के ढेर, गढ़ों के बायस सफरी मुश्किलात बढ़ गईं। शहरी कहते हैं इस रोड से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये रास्ता रवा रहते हैं, लेकिन काफी अरसा से अहलियान इलाका मुतालबा कर रहे हैं कि इस रोड को शहबाज खैल तक पुख्ता किया जाए और यहाँ रेलवे लाइन पे फाटक तामीर किया जाए, क्योंकि रेलवे लाइन के साथ रेलवे फाटक ना होने की वजह से आए रोज यहाँ हादसात होते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। रेलवे लाइन पर फाटक न होने के बायस बड़े सानिहे का खदशा है। यहाँ से गुजरते हैं तो हमें बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी गाड़ी गुजरती है तो हमारी मोटरसाइकिल उसके पीछे होती है, जितने तक वो गाड़ी जाती है वहाँ तक हम पे धूल उड़ती रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती है, हमें नज़ला जुकाम फ्लू वगैरह हो जाता है। शहरियों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल आमिर मस्तोई के दफ्तर आमद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने आमिर मस्तोई से उनके कज़न के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का कहना है कि शाहराहों के मनसूबों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक़ा दौरे हुकूमत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से गड़े पड़ रहे हैं। सड़कों पर सीवरेज लाइन डालकर ही तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देखिए। हमारे अवाम को ये बात पता है कि देखिए बेसिकली जब आप कोई मंसूबा बनाते हैं उसमें आपके बारिश के पानी के लिए बाकायदा लाइन होनी चाहिए, आपकी सीवरेज लाइन उसके अंदर होनी चाहिए। जब आप अपनी सीवर को कंप्लीट करवा देते हैं तो उसके बाद आप उसके ऊपर रोड की कंप्लीशन कर देते हैं, या टफ टाइल लगा देते हैं, या फिर बाकायदा कंक्रीट या कारपेट रोड। वो हुआ ऐसे कि जिसकी शेल्फ लाइफ किसी प्रोजेक्ट की 20 साल होनी चाहिए थी, 15 होनी चाहिए थी, 25 साल होनी चाहिए थी, क्योंकि अरबों रुपए उसके ऊपर लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों ने क्योंकि इतना नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया और प्लानिंग तो की नहीं है ना, यानी सीवरेज लाइन बनाई नहीं और उसके ऊपर मेकअप कर दिया उसका। वो इससे क्या होगा कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वर्कलोड की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, नाकिस मटीरियल की वजह से वो बैठना शुरू हो गया और जगह जगह पे ऐसे गड़े नमदार होते हैं। जहाँ तक हमारी दौरे हुकूमत की बात है, सारी बात है हमारे तो हल्के, हमने तो सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो इतने सख्त ऑर्डर हैं सीएम साहब के भी, महकमों को भी। अभी आपको पता है कि लास्ट वीक भी वो आए थे कि नाकिस मटीरियल के ऊपर और कोई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दर्द कौन कौन सा करें बयां अपना। सीवरेज लाइन और सड़कों की तामीर मुरम्मत में ताखीर से कारोबारी जिंदगी मफलूज, जबकि मुल्तान के बासी सस्ती सफरी सहूलियात से भी महरूम हो गए। मास बिन शफीक की रिपोर्ट देखिए। सीवरेज लाइन मंसूबे और सड़कों की तामीर और मुरम्मत में ताखीर ने जहां एक जानिब कारोबार जिंदगी मुतासिर किया है, तो वहीं दूसरी जानिब शहर औलिया के बासियों से सस्ती सफरी सहूलियात भी छीन ली हैं। एनडीए ता सूरज म्यानी रोड पर सफर करने वाले कहते हैं, नया पाकिस्तान बनाने के लिए आने वाले एक शख्स ने पुराना भी तबाह कर दिया। अपनी सवारी ना होने के बाइस दूर दराज से पैदल चलकर आना पड़ता है। पहले सिटी ट्रांसपोर्ट से मुस्तफीद होते थे, अब उससे भी हाथ धो बैठे हैं। मैं भाई सूरज म्यानी की तरफ से आ रहा हूँ और ये देख रहे बर्बाद हुआ पड़ा है ये नया पाकिस्तान। आप चेक कर रहे हैं, अब मेट्रो यहाँ से नहीं चलती, सब गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, ये बहाना बनाया हुआ है एमडी चौक पे रोक लेते हैं,
10 पता नहीं कितना किलो हमें सफर पैदल चलना पड़ता है। नवाबपुर रोड के रिहायशी कहते हैं सड़क पर खुदाई से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। पहले सिटी ट्रांसपोर्ट से कम खर्च में आसानी सफर करते थे, अब वो सहूलत भी मुयस्सर नहीं रही। 20 रुपए में कहां से कहां लोग इधर से गुजरते थे, कोई आना जाना लगा रहता था, अब वो भी सहूलत नहीं है मुयस्सर। यहाँ जब मोटरसाइकिल नहीं चल सकेगी तो और क्या चीज चलेगी यहाँ। चुंगी नंबर 14 ताखूनी बुर्ज रोड का इस्तेमाल करने वाले भी मुतल्लिका हुकाम से नाराज हैं। यहाँ पर जो बस चल रही थी मेट्रो बस, आवाम को बहुत सहूलियात थी। 20 रुपए में वो सफ़र करते थे, क्योंकि ये रोड जो है इस पर जामिया खैर मदारस भी है, फिर टीबी अस्पताल रोड है। टीबी अस्पताल जाने वाले मरीजों और मदरसे जाने वाले बच्चों से भी सिटी ट्रांसपोर्ट की सहूलत छीन ली। मुतासिरा इलाकों के बासियों ने शहर औलिया की इंतजामिया और मुतल्लिका इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए और सड़कों और सिटी ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़या हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा माज बिन शफीक, मुल्तान। मुल्तान में कब्जा माफिया की शामत पीएचए और जिले इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन लीज पार्क काबिजीन से वागुजार करवा लिया गया, जबकि इंतजामिया ने पुख्ता तजावुजात मिसमार करके नई दीवार तामीर कर दी। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। जिले इंतजामिया और पीएचए मुल्तान की जानिब से विहाड़ी चौक लीनियर पार्क पर गैर कानूनी काबिजीन के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें भारी मशीनरी और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। डीजी पीएचए सैयद शफकत रजा और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर ने ऑपरेशन की निगरानी की। डीजी पीएचए का कहना था कि पार्क पर कब्जा काबिल कबूल नहीं। रोजाना की बुनियाद पर चूंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था तो इसकी सुनवाई भी होती रही, इसकी समाअत होती रही और बिल आखिर ये स्टे ऑर्डर हम खारिज करवाने में कामयाब हो गए। जैसे ही कल ये शाम के वक्त तक स्टे ऑर्डर खारिज हुआ तो आप देख रहे हैं कि आज हम इसको मुकम्मल रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। शफकत रजा का कहना था कि ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से बनाए गए रास्ते को खत्म किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स शाहिद मुकामरान का कहना था सर्विस स्टेशन और ट्रांसपोर्टर्स ने मरकजी रोड तक पहुंचने के लिए यहां कब्जा करके रास्ता बना लिया था। ये जो सामने सर्विस स्टेशन वाला है ना, इसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि गाड़ियां इधर लंबी आती हैं और उसकी वजह से जो है ना उसको प्रॉब्लम हो रही थी और उसके साथ और कुछ लोग मिले हुए थे जिन्होंने ये कब्जा किया था। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर का कहना था कि तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। तजावुजात के खात्मे में गफलत पर सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन एक्शन असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट राव रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया है और असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट राव रफ़ी शाह रुकने आलम टाउन में तैनात थे। राव रफ़ी को काम में गफलत और मुख्तलिफ शिकायत पर मुअत्तल किया गया। असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इब्राहिम को शाह रुकने आलम टाउन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ ऑफिसर चौधरी फरमाश अली ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्तान तजावुजात के खात्मे में गफलत, सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन एक्शन असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट राव रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट लैंड सुपरिटेंडेंट राव रफ़ी शाह रुकने आलम टाउन में तैनात थे, जबकि राव रफ़ी को काम में गफलत और मुख्तलिफ शिकायत पर मुअत्तल किया गया। सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इब्राहिम को शाह रुकने आलम टाउन का इजाफी चार्ज से दे दिया गया। चीफ ऑफिसर चौधरी फरमाश अली ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। मियांवाली इंतजामिया की नाहली लिटरेसी और इस्तेमाल महकमों के दफातर की इमारतें कंट्राट के मनासिर पेश करने लगी। इमारत की छतें टूट फूट का शिकार हैं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि दिन भर छतों से रेत गिरती रहती है। बारिशी अयाम में छतें टपकती रहती हैं। दफातर को जाने वाली सड़क भी खस्ता हाली का शिकार है। दफातर आने वाले शहरियों और मुलाजमीन को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्ठा ने डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इस्तादाद कार में इजाफा कर दिया और अफसरान और मुलाजमान में पाई जाने वाली बेचैनी दूर करने के लिए अहम फैसले किए हैं। प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को कानून के तहत मुस्तकिल करने, वाजिबात की अदायगी के लिए 15 रोज के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब करने की हिदायत जारी कर दी। जरूरी अफसरान और स्टाफ की शफाफ भर्ती के अलावा गाड़ियों के टायर्स और मशीनरी की खरीदारी की ताखीर का भी नोटिस दे लिया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद की एएसपी ऑफिस तौसा में खुली कचहरी सालीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम भी जारी किए। खुली कचहरी में सालीन ने थाना सिटी और थाना सदर से मुतल्लिका मसाइल बयान किए, जिन पर उन्होंने एएसपी और सर्कल एसएचओज को इंक्वायरी की हिदायत की हैं। जबकि इस वक्त एसपी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे।
लोधरा में बॉडी बिल्डिंग के सालाना मुकाबले पोजीशन लेने वाले तलबा और खिलाड़ियों को डीपीओ अब्दुर्रऊफ बाबर ने ट्रॉफियां पेश की। मिस्टर लोधरा का एजाज जीतने वाले हाफिज आमिर को खुसूसी इनाम दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुश्ताक भुट्टा, आगाह कीजिएगा। मस्बत सरगर्मियों से समाज दुश्मन अनासर की सरकूबी होगी और डीपीओ लोधरा इस वक्त फखर जिम में नौजवान नस्ल से मिल रहे हैं, और वो क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को, उन्हीं से बात करूंगा। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि लोधरा जैसे छोटे और दूर दराज इलाके में भी इतनी अच्छी सहूलत भी मौजूद है और लोधरा के नौजवान मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देते हुए यहाँ पर जिम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो मस्बत सरगर्मियाँ मुआशरे में इस तरह की होंगी तो जराइम कम होंगे, ख़ास तौर पर मंशियात की लानत से हमें छुटकारा मिलेगा। हम इनकी सरपरस्ती भी करते रहेंगे, इनका साथ भी देते रहेंगे और हम इनका हिस्सा भी हैं। जी, डीपीओ लोधरा आज की तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। उनकी आमद पर उन पर फूल निछावर किए गए हैं नौजवानों की जानिब से। डीपीओ लोधरा ने मिस्टर लोधरा और दीगर जो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने वाले मुश्ताक भुट्टा आप हमारे साथ मौजूद थे। रहीम यार खान में फलाही तंजीम के ज़रिए तमाम दही इलाकों के मर्द ख़वातीन में चाइल्ड लेबर, कम उम्र की शादी रोकथाम और इसके साथ समाजी नाहमवारी को कम करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जाने के आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में मकामी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम दही इलाकों के जो इलाका मकीन है, इसके साथ साथ माजूर अफराद जो हमारी अकलीती बरादरी है उनको अवेयर करने के हवाले से एक अवेयरनेस का एक सेमिनार जारी है। जो उसके शुरका हैं, जो उसके मेज़बान हैं, उनसे भी जानते हैं। बताइएगा आज के प्रोग्राम में क्या चीज़ है जो कि आप अवेयरनेस दे रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सुनोबर आशिक, प्रेसिडेंट सारा वेलफेयर सोसाइटी। आवाज़ प्रोग्राम के हवाले से रहीमिया खां में ये जो है एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें स्किट्स के ज़रिए जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अर्ली मैरिजेस के ऊपर क्या पेनल्टी आ जाती है और अगर चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या पेनल्टी आती है और इस तरह के जितने भी एक्ट बने हुए हैं ख़वातीन के ह्यूमन राइट्स के लिए और जो है वो उनके ऊपर क्या क्या पेनल्टी आ जाती है। वो एक बहुत खूबसूरत स्किट के साथ ये है लोगों को एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत मैसेज है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है इसके ऑर्गेनाइज़र हैं अदारा तालीम आगाही, और इसका जिस तरह एक आप जानते हैं आगाही का मतलब ही होता है कि अवेयर करना, आवाज़ जो है आवाज़ उठाना और अवेयरनेस देना, यही इनका ऑब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्ट है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से? सर ऐसा है कि ये जो आवाज़ प्रोजेक्ट है, आवाज़ प्रोग्राम, ये पाकिस्तान के 22 अजला में चल रहा है जिसमें 13 अजला जो है पंजाब के हैं और 7 अजला KPK के हैं। हमारा ज़िला उन अजला में शामिल है जहाँ पर तालीम के मसाइल ज़्यादा हैं, बच्चों की तालीम और अर्ली फोर्स मैरिजेस जो केसेस हैं इसमें बहुत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बजाय कम होने के इसमें इजाफा हो रहा था। और आवाज़ प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने इन केसेस को लुक आफ्टर किया और अर्ली जो कॉल्स होती हैं उसको हम विलेज फोरम में लेकर आते हैं, विलेज फोरम में, तहसील फोरम में, और ये जो मसाइल होते हैं वहीं पर तकरीबन हल हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे मसाइल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम बहुत सारे जो इदारों के सरबराहान हैं वो हमारे साथ बैठते हैं। इन मसाइल की तदारुक के लिए हम तजावीज़ उनको पेश करते हैं और वो जो है हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और इन मसाइल को तदारुक के लिए हम आगे तक जाते हैं। बिल्कुल आवाज़ दी जा रही है मजलूम अफराद को, जो हमारी अकलीती बरादरी है, उसके साथ साथ जो अर्ली चाइल्ड होती है उनको रोकने के हवाले से, उसके साथ साथ इदारों। शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल कहते हैं कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली में आवाम की तफरीह और अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने कहा कि आवाम की खिदमत मकसद है। मजीद उनका क्या कहना था आप भी देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, ना सिर्फ चोलिस्तान का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, और बहुत बड़ी रैली है और ये जो मेला है ये तकरीबन 7 दिन पे मुहित है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, बहावलपुर ने, RPO बहावलपुर ने, DPO ने बहुत अच्छे, बहुत आला इंतजाम किए हैं और इसमें हमारे तकरीबन 2200 जो पुलिस जवान अफसरान हैं वो डिप्लॉयड हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आप जानते हैं वो सिक्योरिटी का है, फिर उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट है और बहुत बड़े एक रेडियस में जो टेंटेज है, जो कैंप्स लगे हुए हैं वो फैले हुए हैं, तो उसकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और अल्लाह का शुक्र है कि आज सेकंड लास्ट डे है, अब तक जो इंतज़ामात हैं वो बड़े मौसर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इवनिंग में डिस्पर्सल हो जाएगा और मेला जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा।
تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہم سخت محنت بھی کر رہے ہیں کہ یہ پرامن گزر جائے. اور میرا یہاں آنے کا مقصد مین سیکورٹی آپریٹرز کو دیکھنا بھی تھا اور ایک طرح سے اپنی فورس کو جائیں. ملتان سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم میں ٹیبل ٹینس کی پروفیشنل کوچنگ جاری ہے. کھلاڑی پنجاب گیمز میں اپنا اور ملتان کا نام روشن کرنے کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے معاذ بن شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی معاذ بتائیے گا. ہاں جی بالکل، ملتان سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم میں اس وقت کھلاڑیوں کی رونقیں بحال ہیں. میں اس وقت ملتان جمنیزیم کے ٹیبل ٹینس والے حصے میں موجود ہوں، جہاں پر کوچز کی جانب سے کھلاڑیوں کو ٹیبل ٹینس کی پروفیشنل کوچنگ دی جا رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت کوچ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کھلاڑیوں کو کن ایونٹس کے لیے جو ہے وہ پروفیشنل کوچنگ دے رہے ہیں؟ یہاں میں نے پروفیشنل لیول پہ کوچنگ دے رہے ہیں. نیکسٹ منتھ ہمارے لاہور میں پنجاب گیمز کا ایونٹ ہے، جس کے لیے ہم اپنے ملتان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے انہیں ریڈی کر رہے ہیں تاکہ وہ لاہور جائیں اور پنجاب گیمز میں نمایاں کارکردگی حاصل کریں. ہاں جی بالکل، جو ہے وہ لاہور میں ہونے والی پنجاب گیمز کے لیے کھلاڑیوں کو کوچنگ دینے کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ کھلاڑی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کوچنگ کر رہی ہیں یہاں پہ کب سے کر رہی ہیں اور آپ کی کیسی جو ہے وہ ٹریننگ چل رہی ہے؟ یہاں پہ جو میں پریکٹس کر رہی ہوں کافی عرصے سے کر رہی ہوں، اور میری جو پریکٹس پنجاب گیمز کے لیے چل رہی ہے کافی بہتر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس بار نمایاں کارکردگی پیش کریں گے، اور لاسٹ ٹائم ہم لوگ قائد اعظم گیمز میں برونز میڈل لے کر آئے، اور نیکسٹ ضرور کوشش کریں گے اس پنجاب گیمز میں ہم لوگ برونز کے علاوہ سلور اور گولڈ کی کوشش کریں گے. ہاں جی بالکل، جو ہے وہ گزشتہ سال قائد اعظم گیمز میں برونز میڈل جیتنے والے جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کی جانب سے اس سال اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سال ہونے والی پنجاب گیمز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا. شکریہ. اب ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان میں پی سی بی کلب ونٹر لیگ کا کوارٹر فائنل راؤنڈ شروع. کریسنٹ اور القاسم کلبوں کی ٹیمیں آج مد مقابل ہیں. شعیب گرمانی کی رپورٹ دیکھیے. اسپورٹس گراؤنڈ اسٹیڈیم ملتان میں پی سی بی کلب ونٹر لیگ جاری. کرکٹ میچز کوارٹر فائنل کے مراحل تک پہنچ چکے ہیں. 16 اور 17 فروری کو ونٹر لیگ کے سیمی فائنل کھیلے جائیں گے، جبکہ 22 فروری کو فائنل ہوگا. ونٹر لیگ کا آج ہمارا میچ ہو رہا ہے کریسنٹ کا اور القاسم کا. یہ آئی تھنک پی سی بی کا جو ابھی اسٹرکچر ہے بہت اچھا سٹیپ ہے پی سی بی کی طرف سے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو اس کلب لیول پہ پرفارم کرے گا وہ آگے سلیکٹ ہوگا. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ سہیب مقصود نے کریسنٹ کلب سے کھیل کر قومی ٹیم میں جگہ بنائی. موقع فراہم کرنے پر پی سی بی کے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے کریسنٹ کلب، اور یہاں سے سارے بڑے نام سہیب مقصود، عامر یامین، یہ سارے کریسنٹ کلب سے کھیلتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ ہم یہ ٹورنامنٹ ضرور جیتیں گے. آج کے میچ میں کریسنٹ کلب اور القاسم کلب آمنے سامنے ہیں. ملتان کے سلطان دھواں دار پرفارمنس دے رہے ہیں. کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ شعیب گرمانی، ملتان. کھیل بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ناگزیر. رحیم یار خان میں خصوصی بچوں کے لیے کھیلوں کا میلہ سج گیا. نیزہ بازی اور ڈسک تھرو سمیت مختلف مقابلے بچوں نے بھرپور انجوائے کیا. عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے. چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے تحت عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں کھیل کا میدان سجایا گیا. خصوصی بچوں نے نیزہ بازی، ڈسک تھرو، بوری ریس، چمچ ریس سمیت مختلف مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ کھیلنے سے تفریح کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہے. یہاں کے بہت خوشی ہوئی ہے، یہاں کے بہت خوشی ہوئی ہے. استاد ہمیں لے کے آئے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ایونٹ کروانے چاہیے تاکہ ہفتے کو ہمیں تاکہ اور بہت زیادہ خوشی ملے. بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے اور بھی ایونٹس ہونے چاہیے. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ میلے میں خصوصی طور پر کھیلوں کو شامل کیا گیا. اسپیشل بچوں کو خصوصی طور پہ اس لیے شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بہترین جو انسان ہے، اور انہیں ہم وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں جو کہ ایک نارمل انسان کو کی جا رہی ہے. کھیل میں بچوں کی دلچسپی سے ثابت ہوتا ہے اگر ننھے کھلاڑیوں کو بڑے مقابلوں میں موقع دیا جائے تو اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.